राज्यपाल तमिलिसाई ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सीएम केसीआर से मतभेद है। उन्होंने कहा कि केसीआर के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। राज्यपाल ने चेन्नई में काफी टेबल बुक्स के उद्घाटन के दौरान कई टिप्पणियां की। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा कि अगर कोई सीएम केसीआर के साथ काम कर सकता है तो वह देश में कहीं भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ना ही वे मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है और ना ही वह रबर स्टॉप है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि केसीआर का तानाशाह करते हैं। हालांकि फिलहाल 2 सीएम के साथ काम कर चुकी है, लेकिन दोनों का रवैया अलग अलग रहा है। ஆனா ஒரே ஒரு வருத்தம் என்ன என்றால் நிர்வாக திறமை என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல. அதுவும் தெலுங்கானால அந்த முதலமைச்சர் கிட்ட பணியாற்றுவதுன்றது அது ஒரு சவாலான காரியம். ஏனென்றால் அவர் மிக சவாலான ஒரு விஷயம். இப்போ என்ன பொறுத்த மட்டும் எந்த மாநிலத்துல எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அது மட்டும் இல்ல தமிழகத்தை சொன்னாலும், ஏனென்றால் வேறு வேறு முதலமைச்சர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று பார்த்து அப்படிப்பட்ட முதலமைச்சர்களிடையே பணியாற்றும் போது யார்கிட்ட பணியாற்றினா என்ன எதை பற்றியும் கவலைப்படுறாங்க. நான் பிரச்சனையை எனக்கு எதிர்கொள்வது நான் ஒரு எம்எல்சியை அவர் சொன்னவங்களுக்கு நான் கையெழுத்து போடலைன்றதுதான். நான் சொன்னா கையெழுத்து போட வேண்டியதுதானே, நீங்க சொன்னா கையெழுத்து போட்டு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் ஆள் கிடையாது எனக்கு என்று. ஏனென்றால் அங்கே அவர் மீது சில குறைகள் இருக்கிறது. நீங்க சேவையின் அடிப்படையில் அவரை நியமிக்க சொல்கிறீர்கள், என்னால் நியமிக்க முடியாது என்று சொன்னதன் அடிப்படை தான் இவ்வளவுக்கும் பிரச்சனை. ஆக ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி இருக்கின்ற முதலமைச்சர்கள் சர்வாதிகாரமாக நடக்க நினைக்கிறார்கள் என்பதும் தவறான ஒரு முன்னுதாரணமாக போய்விடக் கூடாது. மறுபடியும் சொல்றேன், தெலுங்கானாவை தான் சொன்னேன், வேற எதையும் நான் சொல்லல. पद यात्रा कर रहे बंडी संजय के स्वागत में लगाए फ्लैक्सी को जीएचएमसी कर्मचारी उठाकर ले गए। इसी के साथ बुद्ध भवन में बीजेपी के कई नेता विश्वजीत से मिलने पहुंचे। जीएचएमसी स्टाफ ने चिकड़पल्ली ब्राइट प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण किया। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों ने कहा कि जीएचएमसी कर्मचारी प्रेस में आए थे और फ्लेक्सी का विवरण मांगा था। भाजपा नेताओं ने विश्वजीत से फोन पर सवाल किया कि पदयात्रा से जुड़ी फ्लेक्सी को क्यों हटाया गया और प्रिंटेड फ्लेक्सी लेने की जरूरत क्यों पड़ी। केपीएचबी पुलिस ने नशीली दवाओं के सेवन के परिणामों से आगाह करने के लिए जेएनटीयू परिसर में नशा विरोधी कार्यक्रम चलाया है। समारोह में कुकटपल्ली एसीपी चंद्रशेखर शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम में नशीले पदार्थ के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे आसपास अपराध का मुख्य कारण नशा हो तो वो कोई आपराधिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इस कार्यक्रम में जेएनटीयू के छात्रों, शिक्षकों और केपीएचबी पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। జేఎన్టీయూ క్యాంపస్లో యాంటీ డ్రగ్ అబ్యూస్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ జేఎన్టీయూ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్తోని, పేరెంట్స్తోని ఈ యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో మనము ఈ క్యాంపస్ను ఎట్లా డ్రగ్ ఫ్రీ క్యాంపస్ చేయాలా, దానికి సంబంధించినటువంటి సూచనలు, సలహాలు కూడా ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క మీటింగ్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ క్యాంపస్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వీరికి సంబంధించినటువంటి పేరెంట్స్ కూడా రావడం జరిగింది. తర్వాత సైకాలజిస్టు, తర్వాత ఈ డ్రగ్కు అడిక్ట్ అయ్యి రిహాబిలిటేట్ అయినటువంటి ఒక అబ్బాయి కూడా ఇక్కడ వీళ్ళని ఉద్దేశించి మాట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ క్యాంపస్ యొక్క మన జేఎన్టీయూ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు కానీ, తర్వాత సారు కోఆర్డినేటర్ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. మా కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ కిషన్ కానీ, తర్వాత వాళ్ళ సిబ్బంది కూడా ఇక్కడ ఈరోజు పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఈ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒక మార్గనిర్దేశం చేయడం జరిగింది. మనం ఎట్లా ఫ్యూచర్ను బ్రైట్గా ఉంచుకోవాలా, డ్రగ్ జోలికి పోకుండా మనం ఎలా ఉండాలా, ఈ యొక్క మన యొక్క సొసైటీని ఎట్లా దీని నుంచి డ్రగ్ ఫ్రీ సొసైటీగా మార్చాలనే దాని మీద ఈరోజు అవేర్ చేయడం జరిగింది. मंत्री केटीआर सीएम केसीआर के शब्दों पर अमल कर रहे हैं। पुराने शहर को डल्लास और इस्तांबुल की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में मंत्री केटीआर ने पुरानी शहर का दौरा किया, विकास कार्यों के लिए नींव रखी। इसके अलावा बहादुरपुरा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया।
36 करोड़ रुपयों की लागत से मुर्गी चौक का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी तरह मंत्री केटीआर ने 21.90 करोड़ रुपयों की लागत से मीर आलम मंडी के विकास कारवा विधानसभा क्षेत्र में लागत से सीवरेज का कार्य उद्घाटन किया। केटीआर ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के प्रति लोगों को सतर्क रहना चाहिए। केटीआर ने कहा कि टीआरएस सरकार के सत्ता में आने के बाद से तेलंगाना में कोई दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर धर्म के नाम पर कोई शहर में ढंग फैलाने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। లేకపోయినా ఒకటే రోజు 500 కోట్ల రూపాయలతో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఇన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతా ఉన్నాయి అంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క కమిట్మెంట్ ఓల్డ్ సిటీ కోసం దాన్ని బట్టి మీరు అందాజ వేయొచ్చు. దాంతో పాటు ఎంపీ గారు కోరినారు మాకు ఇంకా ఇక్కడ శానిటేషన్ ఇంకా బాగా చేయాలని కోరినారు. శానిటేషన్ విషయంలో ఇంకా నేను లోకేష్ కుమార్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, ఇంకా అదనంగా స్వచ్ఛ ఆటోలు కావాల్సి వస్తే తప్పకుండా ఇప్పటికే ఒక 300 ఇచ్చినాం. ఇంకా కావాలంటే 100-150 ఇవ్వడానికి కూడా జిహెచ్ఎంసీ సిద్ధంగా ఉంది, ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి కూడా నేను ఇక్కడ ఉండే మిత్రులందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కరెంటు సమస్య పరిష్కారం అయింది. ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తా ఉన్నారు రోడ్ వైడనింగ్ చేయమని అడిగినారు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా. తప్పకుండా రోడ్ల వైడనింగ్ కానీ ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం కానీ కొత్తగా హైదరాబాద్ నగరానికి కావాల్సిన అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటితో పాటు ఈ వారసత్వ సంపద ఏదైతే 437 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన హైదరాబాద్ నగరం ఉందో ఈ నగరంలో ఉండే వారసత్వ సంపదను ఒకవైపు కాపాడుకుంటూ మరొక వైపు ఈ కార్యక్రమాలు కూడా చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకుంటా ఉన్నాం. నోటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న పేదవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా మనం రిజిస్ట్రేషన్ హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకు కూడా హక్కు కల్పించాలని కోరినారు. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం గతంలో జీవో నంబర్ 58-59 తెచ్చి బ్రహ్మాండంగా 1,00,000 మందికి హైదరాబాద్ లో పట్టాలు ఇచ్చింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు కూడా నోటరైజ్డ్ ప్రాపర్టీస్ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వ పరిశీలనలో अंशम उंदी। मंचिर्याला जिले के बेलमपल्ली में टीआरएस और बीजेपी नेताओं के बीच कहासुनी हो गई जब बेलमपल्ली में एक कपड़ा व्यापारी ने सोशल मीडिया पर टीआरएस नेताओं का अपमान किया तो कार्यकर्ता भड़क उठे। इसी के साथ दोनों पार्टियों के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और मारपीट शुरू कर दी। तनाव बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हैदराबाद की मौसम विभाग ने गर्मी से जूझ रहे तेलंगाना के लोगों को एक अच्छी खबर सुनाई है। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में गरज के साथ हल्की से माध्यम बौछारों की पड़ने की संभावना है। हैदराबाद मौसम विभाग ने 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलाने के लिए अनुमान लगाया है। पता चला है कि सतह की टाफरखी में रायलसीमा से दक्षिणी तमिलनाडु तक फैली हुई है। उधर हैदराबाद में आज धूप खिली हुई है। एलबी नगर में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन के तहत आज राज्य के नगर मंत्री केटीआर वरंगल का दौरा करेंगे। उन्होंने वरंगल और हन्मकोंडा जिलों में सुबह से शाम तक विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बाद में शाम को वह हयगिरिबाचरी मैदान में 13 जिला प्रतिनिधि सभा में भाग लेंगे। प्रतिनिधि सभा की व्यवस्था की जांच मंत्री एराबेली दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ और कई नेताओं की। एराबेली ने कहा कि त्रिनगरी जो पहले से ही विकास की प्रक्रिया में है, अन्य क्षेत्रों के लिए एक आदेश के रूप में खड़ा है। वर्किंग प्रेसिडेंट कल्वकुंट्ల తారక రామారావు గారు వరంగల్ వస్తున్న సందర్భంగా వరంగల్ హన్మకొండ జిల్లాలకు సంబంధించి ఇద్దరు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుల పదవి బాధ్యతలు చేపట్టడం, అలాగే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న తర్వాత ఆఖరణ ప్రతినిధుల సభలో పాల్గొనబోతున్న సందర్భంగా వారికి జిల్లా ప్రజలందరి ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజలందరి తరఫున స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ ఈ సమావేశాలను సభలను ప్రతినిధులందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు విజయవంతం చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇవాళ వరంగల్ పట్టణం రాష్ట్రం లోపటే అభివృద్ధి లోపట చాలా ముందున్నది. ఏది కూడా ఆదర్శంగా నిలిచిపోతా ఉంది. ఇలా భద్రకాళి బండ్ కానీ సెంట్రల్ లైటింగ్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా
రాష్ట్రంలో చర్చనీయమైంది. ఏదైనా ఉంటే పోయి వరంగల్లో చూసి రాపోండి, ఆ డెవలప్మెంట్ చూసి రాపోండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా చర్చించడం జరుగుతున్నది. వరంగల్ మంచి వైభవంతో ముందుకు పోతున్నది. तेलंगाना में कोरोना के मामले धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। राज्य में कुल 22 मामले सामने आए, जबकि हैदराबाद में 12 कोरोना मामले सामने आए। राज्य में कोई नई मौत नहीं हुई है। 24 को कोरोना से नई छुट्टी मिली। चिकित्सा विभाग ने कहा कि वर्तमान राज्य में सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली बीते 3 दिनों में ही येलो, अंबर और ऑरेंज अलर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। 11 मई से एक दक्षिणी जिला रेड जोन में शामिल हो गया है, क्योंकि यहां 11 से 17 अप्रैल के बीच साप्ताहिक संक्रमण पर 6% से अधिक दर्ज की गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि राहत यह भी है कि अस्पतालों में कोविड रोगियों के अधिकांश बिस्तर खाली है। मृत्यु दर पर भी सबसे कम है। शायद इसी के चलते अब तक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कानून को लेकर सरकार ने प्रतिबंधों पर कोई फैसला नहीं लिया। अभी कोरोना को 2 साल हो गए। तैयारियों से लेके कोरोना की पूरी स्थिति, फिर लोगों की इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन की स्थिति, इन सबको देखते हुए हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। कोरोना कुछ ना कुछ सीमा में रहेगा, कभी थोड़ा सा आगे रहेगा, कभी नीचे रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ अगर सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो उठाए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि कोई हॉस्पिटल में केस नहीं है, उस तरह के चिंता की स्थिति नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कोरोना के काउंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। 20 तारीख को एक्सपर्ट्स की मीटिंग है DDMA के साथ में, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एपी में कोरोना के मामले हिरासत में पिछले 24 घंटों में केवल 5 मामले सामने आए। 3221 लोगों को कोरोना टेस्ट हुआ और 5 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्य में कोरोना से कोई नई मौत नहीं हुई है। इसके अलावा 10 नए लोगों ने कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। IPL 2022 के 31वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। लखनऊ के सामने 182 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 8 विकेट खोकर 136 रन के बना सकी और मैच हार गई। LSG के लिए जेसन होल्डर और दुश्मन चमीरा ने 2-2 विकेट चटकाए हैं। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत अनियंत्रित है। आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र रामबुकाना में पुलिस की गई गोलाबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो रहे। उस दौरान लोग पेट्रोल की कीमत में हालिया वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई है। पुलिस का कहना है कि अग्र प्रदर्शनकारियों के तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। स्थिति को संभालने के लिए इलाका में कर्फ्यू लगा दिया गया।